ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ BTHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਥਰਮਲ ਐਂਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਐਂਡ ਨਿਊਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਟੂ enable the operator to raise the implement for transportation and lower it into work directly from his seat। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਰ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਚੱਕ ਸਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਇਟ ਇਨਟੂ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਨੀਚੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਜ਼ ਟੂ ਅਨੇਬਲ ਦੀ ਓਪਰੇਟਰ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫॉर ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਇਟ ਇਨਟੂ ਵਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਸੀਟ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਅਦਰ ਪਰਪਸਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਡੈਪਥ ਔਰ ਹਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਟੂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਡੈਪਥ ਐਂਡ ਡਰਾਫਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਾਵਰ ਰੀਅਰ ਵੀਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਜੇ ਰੀਅਰ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰੀਅਰ ਵੀਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹਿਚਿੰਗ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹਿਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਹਿਚ ਕਰਨਾ।
वो भी असी अगे पढ़ते जावांगे। वेट ट्रांसफर टू इंप्रूव दी इंटरैक्शन। वेट ट्रांसफर की होंदा है? वेट ट्रांसफर का तुहानूं एक पूरा चैप्टर आएगा। वेट ट्रांसफर दे विच की होएगा, किद्दां असी ट्रैक्टर दे टायरां दे विच एक्सट्रा वेट अटैच करके ट्रैक्शन नूं इंप्रूव करते हैं। तुसीं देखिया होएगा कई बार ट्रैक्टर दे टायरां दे विच पानी भरिया जाता है, एयर दे नाल पानी भी भरिया जाता है। वो पानी की करता है? ट्रैक्टर नूं हैवी करता है, ट्रैक्टर दे भार नूं वधांदा है। वो जो ट्रैक्टर का भार वध जाता और इहनां जिहड़ी ट्रैक्शन है वो ज़्यादा वधिया हो जाती है। वो सारा जिहड़ा आपां अगे डिस्कस करांगे। सो फिलहाल यह की सीगा, यह जस्ट एक फंक्शन दस्से उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम दे, भी हाइड्रोलिक सिस्टम की काम कर सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का मेन जिहड़ा काम है वो यही है भी इंप्लीमेंट नूं एक जगह तो दूजी जगह चक के लिया के जाना। जे खेत च आपां काम करते पे तो किसी इंप्लीमेंट नूं अप डाउन मूव कराना, अप डाउन मूव कराने दे विच हैल्प करनी। यह सारा आपां जिहड़ा है वो डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम दे विच। हुण आ गया जी एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करन दे फायदे की ने ट्रैक्टर दे विच? कोई ना कोई फायदे तो होणगे ही होणगे, तां ही हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते पे, नहीं तो असीं कुछ होर भी यूज़ कर सकते सीगे, मकैनिकल सिस्टम यूज़ कर सकते सीगे, न्यूमैटिक भी यूज़ कर सकते सीगे। बट वाई हाइड्रोलिक? क्यों हाइड्रोलिक किया? क्योंकि हाइड्रोलिक के एडवांटेज सीगे। एडवांटेज किहड़े-किहड़े सीगे? सब तो पहले जी आपां एडवांटेज की गल करते हैं तो उहदे च की कहंदे ने, इट इज़ ईजी एंड सिंपल इन डिज़ाइन। जिहड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, पहली गल तो वो ईजी है, उसका जिहड़ा कंस्ट्रक्शन है वो ईजी है, तो डिज़ाइन जिहड़ा है वो सिंपल है। हाइड्रोलिक सिस्टम का जिहड़ा डिज़ाइन है वो ईजी तो सिंपल है, ज़्यादा कंपलीकेटेड नहीं है। तुसीं BTHP दे विच कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़े होणगे, उहदे च तुसीं पढ़िया होएगा भी एक टैंक है, टैंक दे नाल पाइप्स ने, वॉल्व है, वॉल्व तो बाद एक्चुएटर लगे ने, सिलेंडर लगे ने। सो ज़्यादा कंपलीकेशनस नहीं आंदियां इहदे विच। आपां इत्थे भी दोबारा रिवाइज़ करांगे एक बार। पहला एडवांटेज की हो गया हाइड्रोलिक सिस्टम का, भी हाइड्रोलिक सिस्टम जिहड़ा है उसका जिहड़ा कंस्ट्रक्शन है वो ईजी है, तो उसका जिहड़ा डिज़ाइन है वो सिंपल है। सैकेंड जिहड़ा एडवांटेज असीं पढ़ते हैं, सैकेंड एडवांटेज दे विच की कहंदे ने, दी हाइड्रोलिक वर्किंग यूनिट्स कैन बी फिटेड एनीवेयर इन एनी पोजीशन। जिहड़े हाइड्रोलिक सिस्टम के वर्किंग यूनिट ने, जिहड़ियां मशीनां हाइड्रोलिक सिस्टम के नाल चलदियां ने, जिहड़े पार्ट्स हाइड्रोलिक सिस्टम के नाल चलते हैं, उन्हां नूं किते भी किसी भी पोजीशन ते फिट किया जा सकता है। कैन बी फिटेड एनीवेयर इन एनी पोजीशन। जिस मर्जी पोजीशन ते असीं उहनूं फिट कर दईए तो जिहड़ी मर्जी साइड ते असीं उहनूं फिट कर दईए, वो अपना जिहड़ा काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जिहड़ी हाइड्रोलिक मशीनरी है ना, उहनूं चलण दे लई सिर्फ हाइड्रोलिक ऑयल चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल असीं फ्लैक्सीबल पाइप दे नाल जिथे मर्जी पहुँचा दईए। जे फ्लैक्सीबल पाइप के नाल हाइड्रोलिक ऑयल जिथे मर्जी पहुँच सकता है, तो फिर वो चीज़ भी जिद्दां मर्जी आप उहदे तो काम लै लीए, सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस करके असीं उहनूं किते भी फिट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन दे विच फिट कर सकते हैं। थर्ड, स्पीड कैन बी ईजली कंट्रोल्ड। जिहड़ी हाइड्रोलिक सिस्टम ने, हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स ने, उन्हां दी स्पीड नूं ईजली कंट्रोल किया जाता है, किया जा सकता है। क्यों ईजली कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि उहदे विच एक पंप लगा है, पंप की हैल्प के नाल असीं स्पीड नूं ईजली कंट्रोल कर सकते हैं। पंप होने दे नाल की होएगा, पंप जिहड़े आंदे ने कॉन्सटेंट डिसप्लेसमेंट भी आंदे ने, पोस्ट अपना इनकॉन्सटेंट डिसप्लेसमेंट वाले पंप भी आंदे ने। सो पंप की मदद दे नाल असीं उहनूं ईजली कंट्रोल कर सकते हैं। यह भी एक एडवांटेज हो गया भी जिहड़ी स्पीड सीगी वहीकल उहनूं ईजली कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी इंप्लीमेंट की स्पीड नूं असीं ईजली कंट्रोल कर सकते हैं जे वो हाइड्रोलिक सिस्टम के नाल काम करती भी है। फोर्थ एडवांटेज की हो गया, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल यूनिट कैन बी कंट्रोल्ड। वर्किंग कैपेसिटी किसी भी इंडिविजुअल यूनिट की, मान लो हाइड्रोलिक सिस्टम के नाल असीं 4-5 अलग अलग यूनिट लगाए ने, उन्हां चों किसी एक दी आपां स्पीड नूं, वर्किंग कैपेसिटी नूं घटाना या वधाना चाहते हैं, वो भी असीं घटा वधा सकते हैं। उहदे च क्योंकि वॉल्व लगे ने, अलग अलग तरह के वॉल्व ने, जिद्दां कि डायरैक्शन कंट्रोल वॉल्व आ गए, वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्व आ गए, इदां अलग अलग तरह के वॉल्व आते हैं। उन्हां वॉल्व्स की मदद के नाल असीं किसी भी चीज़ की कैपेसिटी, जिहड़ी वर्किंग कैपेसिटी है, उन्होंने घटा भी सकते हैं तो वधा भी सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की आंदा जी, देयर इज़ प्रैक्टिकली नो वियर एंड टीयर एज दीज पार्ट्स ऑलवेज रन इन हाइड्रोलिक ऑयल एंड गैट लुब्रीकेटेड। जिहड़े हाइड्रोलिक सिस्टम के पार्ट्स ने, जिन्ने भी पार्ट्स ने, उन्हां दे विच जिहड़ा वियर एंड टीयर हुंदा ना, वो बिल्कुल घट हुंदा है। क्यों वियर एंड टीयर घट हुंदा है? क्योंकि वो हमेशा हाइड्रोलिक ऑयल दे विच लगे रहंदे ने। हाइड्रोलिक ऑयल दे विच लगे रहने के कारण वो अपने आप ही लुब्रीकेटेड होंदे रहंदे ने।
अपने आप उन्होंने लुब्रीकेशन मिलती रहती है, इस करके वो जोड़ा वीयर एंड टीयर है वो घट है। नैक्सट जोड़ा पॉइंट आ गया, 6th पॉइंट जोड़ा आ गया वो आया इट इज़ चीपर टू मेनटेन। भी जोड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम है, जोड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम है उन्होंने मेनटेन करना चीप है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स जोड़े ने थोड़े कंपोनेंट्स लगे ने, घट कंपोनेंट्स लगे ने। घट कंपोनेंट्स लगे होने कारण जोड़े कंपोनेंट्स ने वो जल्दी खराब नहीं होंगे। प्लस असी यह भी कह सकते हैं भी जोड़े कंपोनेंट्स लगे ने वो कंपोनेंट्स जोड़े ने अपने आप लुब्रीकेट होंदे रहंदे ने। अपने आप लुब्रीकेट होने का मतलब की है वो जल्दी खराब नहीं होंगे। असी मशीन अपने मशीन दे विच जे कोई मशीन यूज़ करते हैं उन्होंने असी लुब्रीकेट करते हैं, उन्होंने असी जो लुब्रीकेट करते हैं तो उन्होंने लुब्रीकेट करने का साडा रीज़न की होंदा है भी वीयर एंड टीयर घट होवे। तो जे असी गल करते पे हाँ अपने हाइड्रोलिक सिस्टम की, उहदे विच ते हमेशा हाइड्रोलिक ऑयल ने चलते रहना है। हाइड्रोलिक ऑयल ने एक तरह लुब्रीकेशन का काम भी करना है। सो जिहड़ा वीयर एंड टीयर है वह भी घट है, तो जिहड़े पार्ट्स लगे ने उन्होंने मेनटेन करना भी चीपर है। 7th हैवीयर जॉब्स कैन बी डन क्विकली विद लैस फोर्स। तुसीं साड़ियां ने BTHP दे विच हाइड्रोलिक जैक पढ़िया होएगा। हाइड्रोलिक जैक दे विच तुसीं की पढ़िया सीगा भी हाइड्रोलिक जैक एक इदां दी मशीन है जिन्हों असी यूज़ करते हैं हैवी लोड लिफ्ट करने के लिए विद लैस एफर्ट। उदा ही जे आपां कोई खेतीबाड़ी दे विच हैवी वर्क जॉब करनी है घट एफर्ट लगा के, तो उहदे लई भी असी यही यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम के नाल असी कोई भी भारी जॉब जिहड़ी है वो कर सकते हैं, तो साडा जिहड़ा एफर्ट है वो बिल्कुल घट लगेगा। सो यह सीगे एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। की एडवांटेज हो गए? पहला एडवांटेज हो गया फिर यदि जी कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है, डिज़ाइन जोड़ा सिंपल है। दूजे नंबर पर गल की भी जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो जोड़े कंपोनेंट्स ने उन्होंने किते भी फिट किया जा सकता है, किसी भी पोजीशन पर फिट किया जा सकता है। जोड़े हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स की स्पीड है उन्होंने असी अपनी मर्जी के नाल ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। वर्किंग कैपेसिटी जी है किसी भी इंडिविजुअल हाइड्रोलिक कंपोनेंट की उन्होंने भी कंट्रोल किया जा सकता है। यह नहीं भी हाइड्रोलिक सिस्टम के जिन्ने भी कंपोनेंट्स ने सारे इक्को वर्किंग कैपेसिटी से काम करेंगे, नहीं, किसी भी चीज़ की वर्किंग कैपेसिटी को घटाया वधाया जा सकता है। प्रैक्टिकली जो देखा जाए वीयर एंड टीयर हाइड्रोलिक सिस्टम के घट है। क्यों हाइड्रोलिक सिस्टम के वीयर एंड टीयर घट है? क्योंकि वो जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो एक तरह लुब्रीकेशन का काम भी करता पाया, इस करके वीयर एंड टीयर घट है। इट इज़ चीपर टू मेनटेन, इनू मेनटेन करके रखना भी चीप है, सस्ता है, क्योंकि पार्ट्स जोड़े ने वो जल्दी खराब नहीं होंगे, इस करके जी मेनटेनेंस कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है वो भी घट है। हैवीयर जोड़े काम ने, हैवीयर जॉब्स जोड़ियाँ ने उन्होंने असी ईजीली लिफ्ट कर सकते हैं विद दी हैल्प ऑफ लैस फोर्स। नैक्सट आ गया जी मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स किहड़े ने? सब तो पहले हाइड्रोलिक टैंक, दूजे नंबर पर हाइड्रोलिक पंप, तीजे नंबर पर हाइड्रोलिक वॉल्व, चौथे नंबर पर हाइड्रोलिक सिलेंडर, पंजवें नंबर पर हाइड्रोलिक पाइप्स, छेवें नंबर पर हाइड्रोलिक ऑयल। अज के लैक्चर के असी पहले कंपोनेंट बारे डिस्कस करांगे, रिजर्वायर और हाइड्रोलिक टैंक। बाकी असी नैक्सट लैक्चर डिस्कस करांगे। अज असी पहले कंपोनेंट को थोड़ा जिहा डिटेल दे विच पढ़ांगे। सो रिजर्वायर और हाइड्रोलिक टैंक, तुहानूं पता ही है टैंक असी किहनूं कहने आ, रिजर्वायर असी किहनूं कहने आ, जिहदे 'च असी हाइड्रोलिक ऑयल नूं स्टोर करते पे हाँ। हाइड्रोलिक ऑयल नूं असी संभाल के रखिया होया है तां जो उहदे तों आपां काम लै सकीए। इट इज़ ए मैटेलिक टैंक इन विच हाइड्रोलिक ऑयल इज़ फिल्ड इन। रिजर्वायर या हाइड्रोलिक टैंक की चीज़ है? एक मैटेलिक दा टैंक है, मैटल दा टैंक है, जिहदे विच असी हाइड्रोलिक ऑयल नूं फिल करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल नूं भरते हैं। To check the level of the oil in the tank, either it is fitted with a plastic pipe or dipstick। कहते जे असी हाइड्रोलिक टैंक दे विच अंदर तेल का लैवल कितना है उन्होंने जे चैक करना ना, तो वो जां तो एक प्लास्टिक की पाइप लगी होएगी जां एक डिपस्टिक लगी होएगी। ठीक है, डिपस्टिक मतलब जिदा आप इंजन दे विच इंजन ऑयल चैक करते हैं, एक स्टिक के वो स्टिक नूं डिप करके चैक कर लेने हैं कितना तेल है। ऐदा ही एक पाइप भी आती है। पाइप की करती है, जिहड़ा हाइड्रोलिक टैंक होएगा ना उहदे नाल एक प्लास्टिक की पाइप बाहर लगी होएगी। जिन्ना जिन्ना तेल आपां विच हाइड्रोलिक ऑयल च पाई जावांगे पाइप का लैवल भी उन्ना उन्ना उपर वधदा जाएगा। ठीक है, वो हाइड्रोलिक ऑयल सानू वो पाइप की सानू की दसदी है प्लास्टिक की भी टैंक के अंदर ऑयल का लैवल कितना है, उस पाइप तो सानू वो पता लगता है। ठीक है, लैवल चैक करने लई दोनों चों एक चीज़ जरूर लगी होएगी, जां तां पाइप लगी होएगी बाहर
ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਪਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਪਾਈਪਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਵਿਦ ਦੀ ਟੈਂਕ। ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਾਈਪਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। one is inlet from where the oil is taken by the one is inlet from where the oil returns from the system, and second is the outlet from where the oil is taken by the pump। 2 ਪਾਈਪਾਂ, ਇੱਕ ਇਨਲੈਟ ਪਾਈਪ, ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਪ ਨੇ ਉਸ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਨੇ ਉਸ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਲੈਟ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦੀ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਇਜ਼ ਫਿਟਡ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਪੌਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਮਾਊਥ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਪ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਥ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ 'ਤੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਫਿਲਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਿਟਡ ਐਟ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪਾਈਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਪਾਈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਵੋਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਵੀਅਰ ਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The filter should be cleaned regularly and replace at manufacturer recommendations। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Sometimes a magnet is also placed near the strainer so that any metal particles, if present in the hydraulic oil, are caught by this magnet। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਮੈਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਔਨ ਦੀ ਟੋਪ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ a breather is fitted through which clean air can get in or air from the tank can get out when the tank is being filled with oil। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਰੈਥਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਰੈਥਰ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਹੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਏਅਰ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲ ਨੇ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਏਅਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਰੈਥਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਰੈਥਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਏਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ,
तो बॉटल जी जल्दी भरी जाती है। रीज़न की है वह भी एयर जी है ना वो बाहर आन लग पैंदी है। जो असी फनल में चक लें ना, कीप में चक लें तो नीचों एयर जी है उन्होंने बाहर निकलने का रस्ता मिल जाता है। ठीक है, एयर में जो बाहर निकलने का रस्ता मिलता है फिर अंदर पानी या तेल अंदर डिगना स्टार्ट करता है। यही जी एयर में बाहर आने का रस्ता ना मिले फिर जल्दी आप बॉटल में फिल नहीं कर सकते। इस करके हर एक हाइड्रोलिक टैंक ते एक ब्रैथर जिहड़ा है वो फिट किया जाऊगा। उस ब्रैथर का काम की होएगा, उस ब्रैथर का काम होएगा सिर्फ तो सिर्फ एयर नूं बाहर कढ़ना ते एयर नूं अंदर जान देना। एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज़ फिटेड ए ड्रेन प्लग। टैंक के बॉटम ते एक ड्रेन प्लग भी दिता जाएगा जिहदे राहीं आपां उहनूं खोल के जिन्ना सारा अंदर हाइड्रोलिक ऑयल है सारे दे सारे ऑयल नूं असीं बाहर कढ़ सकीए। ऐदां ही हर टैंक दे विच हाइड्रोलिक टैंक दे विच नीचे एक ड्रेन प्लग जरूर दिता जाऊगा भी जिहदे प्लग नूं असीं खोल के सारे दे सारे तेल नूं बाहर कढ़ सकीए। यह सीगा तुहाडा हाइड्रोलिक टैंक जिहदे च असीं पढ़िया भी हाइड्रोलिक टैंक एक की चीज़ है। एक मैटल का टैंक है जिहदे च असीं तेल फिल करते हैं। उहदे च तेल का लैवल चैक करने के लिए जां प्लास्टिक की पाइप होंदी है जां डिपस्टिक होंदी है। दो पाइप जिहड़ियां ने, एक इनलैट पाइप है एक आउटलैट पाइप है। आउटलैट पाइप के राहीं तेल ने पंप के रस्तेों बाहर जाना है। इनलैट पाइप के राहीं तेल ने अंदर आना है जिहड़ा तेल बच गया। जिहड़ा आउटलैट पाइप है वो माउथ के कोल एक स्ट्रेनर लगा, एक पौनी लगी है जिहदे विचों तेल ने बाहर होके साफ होके बाहर जाना है। तो कई बार असीं की करते हैं फिल्टर भी अटैच कर दें, उस फिल्टर के राहीं भी तेल साफ होकर बाहर जाता है। जिहड़ा फिल्टर है उन्होंने सानू रैगूलर इंटरवल तो बाद क्लीन करना पेगा तो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सानू उन्होंने रिप्लेस भी करना पेगा। कई बार असीं मैगनेट भी रख दें हाइड्रोलिक टैंक के अंदर। वो मैगनेट की करता है जिहड़ा हाइड्रोलिक ऑयल दे विच आयरन वगैरह या कोई मैटल वगैरह मिक्स होके आ गई मशीन दे विचों ते उहनूं अपने नाल अटैच कर दिंदा है ते बाहर नहीं जान दिंदा। किसी भी हाइड्रोलिक टैंक के टॉप पर एक ब्रैथर फिट किया जाएगा। उस ब्रैथर का काम की होएगा जदों भी ब्रैथर दे विच हाइड्रोलिक टैंक के विच असीं तेल फिल करांगे उदों अंदर जिहड़ी एयर है वो ब्रैथर के राहीं बाहर निकलेगी तो जदों हाइड्रोलिक टैंक के विचों तेल बाहर कड्डांगे तो उहदी जगह लैण दे लई तेल की जगह लैण दे लई ब्रैथर के राहीं एयर जिहड़ी है वो अंदर आएगी। किसी भी हाइड्रोलिक टैंक के बॉटम ते एक ड्रेन प्लग भी दिता जाता है। वो ड्रेन प्लग की करता है जे आप हाइड्रोलिक टैंक नूं खाली करना चाहिए तो ड्रेन प्लग के राहीं आप उन्होंने खाली भी कर सकते हैं। नैक्सट आ गया जी लास्ट तुहाडा आ गया मेनटेनेंस ऑफ रिजर्वायर। भी आप रिजर्वायर की मेनटेनेंस किद्दां करनी है, रिजर्वायर या हाइड्रोलिक टैंक की रख रखाव किद्दां करनी है, उसका ख्याल किद्दां रखना है तां जो काम जिहड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम जिहड़ा वो सही तरह चलता रहे। वो जो कि कहते हैं पाइप कनैक्शन शुड बी फुली टाइट। भी जिहड़ियां आपां पाइप्स यूज़ करनियां ने ना, चाहे वो इनलैट पाइप है चाहे वो आउटलैट पाइप ने जां होर जिहड़ियां भी पाइप्स लगनियां ने नाल हाइड्रोलिक पाइप्स, उन्होंने जो कनैक्ट करना है किसी भी चीज़ के नाल तो कनैक्शन जिहड़ा होना चाहिए फुली टाइट होना चाहिए। कनैक्शन पूरी तरह टाइट होना चाहिए। जेकर कनैक्शन पूरी तरह टाइट होएगा तो फिर ही साडा हाइड्रोलिक सिस्टम काम सही तरह करेगा। अदरवाइज़ किते ना किते जे लीकेज आ गई तो हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम सही तरह नहीं जे करना। इस करके पाइप कनैक्शन जिहड़े ने वो फुली टाइट होने चाहिए ने, नंबर 1। नंबर 2, फिल्टर शुड बी क्लीनड एट रैगूलर इंटरवल्स। जिहड़ा फिल्टर है उन्होंने रैगूलर इंटरवल ते क्लीन करना ही पैना है। जे रिकमेंड किया मैन्युफैक्चरर ने उन्होंने तुसीं 2 महीने बाद या 3 या 4 5 6 महीने बाद चेंज करना है तो उन्होंने चेंज भी करना पैना है। नहीं भी फिल्टर आपां ऐदा ही बिना साफ किते चलाई जाइए। जे बिना साफ किते चलावांगे तो तेल दे विच इंप्योरिटीज़ ने की करना है, फिल्टर नूं खराब कर देना है। फिल्टर हमेशा लई तुहाडा चौक हो जाएगा, जम जाएगा तो काम नहीं करेगा। इस करके फिल्टर नूं रैगूलर इंटरवल्स तो बाद क्लीन करना जरूरी है। ब्रैथर फिटेड शुड बी क्लीनड एट एवरी सर्विस बाय क्लीनिंग इट विद डीजल और पेट्रोल एंड ब्लोइंग एयर थ्रू इट। जिहड़ा असी ब्रैथर फिट किया सीगा, मतलब असी क्या सीगा टॉप ते उत्ते एक ब्रैथर फिट किया जाऊगा, एक ढक्कन फिट किया जाऊगा जिहदे च होल होगा। उस होल के राहीं एयर जिहड़ी है वो बाहर आएगी तो एयर जिहड़ी है अंदर जाएगी। वो कहते ब्रैथर नूं भी असी साफ करना है डीजल दे नाल या पेट्रोल दे नाल या विद दी हैल्प ऑफ न्यूमैटिक एयर दे नाल, कंप्रैस्ड एयर दे नाल। वो कंप्रैस्ड एयर आप जो ब्लो करांगे उहदे विच ते उहदे च जे कोई इंप्योरिटी वगैरह होएगी वो भी बाहर निकल आएगी। उन्होंने भी साफ रखना जरूरी है क्योंकि एयर ने अंदर उहदे राहीं जाना है, एयर ने बाहर उहदे राहीं आना है। इस करके उन्होंने भी साफ रखना जरूरी है। 4th पॉइंट, हाइड्रोलिक ऑयल ऑफ करैक्ट ग्रेड एंड क्वालिटी शुड रिमेन फिल्ड अप टू द करैक्ट लैवल। जिहड़ा असी हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करना है
वो करैक्ट ग्रेड होवे, जिहड़ा ग्रेड दा आपां फिल करना है उस ग्रेड का ही रखिए। एंड क्वालिटी शुड रिमेनड फिल्ड अप टू दी करैक्ट लैवल, तो क्वालिटी भी तेल की वधिया होवे ते जो उसका लैवल है भी जिन्ने लैवल तक असी तेल भरना है उन्ना ही तेल भरीए, ना ही तेल आपां घट भरीए तो ना ही तेल आपां ज़्यादा भरीए। जिन्ना तेल सानू चाहिदा है उन्ना तेल आपां उहदे विच जरूर रखांगे, तेल घटाना भी नहीं तो तेल वधन भी नहीं देना। इस करके हाइड्रोलिक ऑयल जिहड़ा आपां यूज़ करना है वो वधिया क्वालिटी का करना है तो सही ग्रेड का करना है। नैवर मिक्स हाइड्रोलिक ऑयल ऑफ डिफरेंट ग्रेड वाइल टॉपिंग अप, कदे भी टॉपिंग अप करते हुए दो अलग अलग ग्रेड के तेल मिक्स नहीं करने। टॉपिंग अप होंदा है मतलब जिद्दां असी मोबाइल दे विच टॉप अप करते हैं, मोबाइल दे विच रीचार्ज करते हैं, टॉप अप करते हैं, मतलब साडे कोल वैलिडिटी पई है, असी उत्तों पैसे पवाना चाहते हैं, उन्होंने असी टॉप अप कहने हैं। ठीक है, मतलब ऑलरेडी तेल पिया असी उत्तों होर तेल पाना चाहते हैं। जां असी पीज़ा खाने जो असी पीज़ा खाने वो पीज़े के कहते तुसीं टॉपिंग्स की पवानी है, भी मतलब पीज़े के उपर तुसीं की होर पवाना चाहते हो। जो बेसिक चीज़ां ने, जो बेसिक चीज़ां वो तुहानूं मिलणगियां लाइक तुसीं ऑलिव्स पवाना चाहते हो, तुसीं एक्सट्रा चीज़ पवाना चाहते हो, उदां ही मतलब टॉपिंग अप का मतलब होंदा है उपर एक्सट्रा की पाना चाहते हो। मतलब ऑलरेडी टैंक दे विच तेल हैगा, असी उत्ते होर तेल पाना चाहते हैं, होर टॉपिंग अप उहनूं करना चाहते हैं, तेल नूं होर भरना चाहते हैं। तो जो टॉपिंग अप करना है असी उही ग्रेड का तेल पाना जिहड़े ग्रेड का तेल पहले उहदे विच हैगा। ऐ नहीं भी पहले एक बारी तेल होर पाता दूजी बारी तेल होर पाता, ऐदां दी गलती कदे भी नहीं करनी। ठीक है, नैवर मिक्स हाइड्रोलिक ऑयल ऑफ डिफरेंट ग्रेड वाइल टॉपिंग अप। नैक्सट 6th पॉइंट, कीप द ऑयल फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। हमेशा तेल नूं डस्ट तो, घट्टे तो ते डर्ट गंदगी तो बचा के रखना है। तेल दे विच कदे भी मिट्टी घट्टा गंदगी मिक्स नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज कीप दी टैंक कैप फुली टाइटनड, जिहड़ा टैंक दा कैप है उन्होंने हमेशा फुली टाइट करके रखना है। ठीक है, जिहड़ा हाइड्रोलिक टैंक सीगा उहदा जिहड़ा कैप है उन्होंने कभी लूज नहीं छड्डना, जे लूज छड्डांगे तो मिट्टी घट्टा जिहड़ा अंदर एंटर करेगा। 8th पॉइंट, नैवर अलो वाटर डीजल और पेट्रोल टू मिक्स विद दी हाइड्रोलिक ऑयल। कदे भी पानी डीजल पेट्रोल ऐदा दी चीज़ां जिहड़ियां ने आपां हाइड्रोलिक ऑयल दे विच मिक्स ना करनियां ने, ना ही होण देनियां ने। ठीक है, हमेशा बचा के रखना भी हाइड्रोलिक ऑयल दे विच ऐदां दी कोई चीज़ जिहड़ी वो मिक्स ना होवे। सो मेनटेनेंस ऑफ रिजर्वायर असीं की पढ़िया, पाइप कनैक्शन जिहड़े ने वो टाइट होण, फिल्टर असीं रेगूलर इंटरवल से साफ़ करिए, ब्रैथर जिहड़ा उन्होंने भी असीं सर्विस के दौरान साफ़ करिए, हाइड्रोलिक ऑयल जिहड़ा असीं वरतीए वो वधिया क्वालिटी का होवे ते वधिया ग्रेड का होवे ते उन्होंने असीं करैक्ट लैवल तक भरना है। कदे भी दो तरह का तेल मिक्स नहीं करना, तेल नूं हमेशा डस्ट ते डर्ट तो बचा के रखना है। हाइड्रोलिक टैंक का जिहड़ा कैप है हमेशा उन्होंने टाइट करके रखना है, तो कदे भी पानी डीजल ते पेट्रोल नूं हाइड्रोलिक ऑयल दे विच मिक्स नहीं होण देना। यह सीगा तुहाडा अज दा लैक्चर, बाकी असीं नैक्सट लैक्चर स्टडी करांगे।